हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन के बाद मैं फिर एक न्यू टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट कर रहा हूँ जो बच गया था। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने क्लास लगातार कंटिन्यूसली ले नहीं पाया, पर उम्मीद करता हूँ कि आज से मैंने कंटिन्यूसली आपका जो प्रॉब्लम है और जो न्यू टॉपिक्स है वो स्टार्ट करूँगा, जो आपका बोर्ड क्लासेस में जो आने वाला एग्ज़ाम में काम आएगा। ओके, सो मैं आज आपके लिए एक प्रोबेबिलिटी का न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। इट इज रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो नाउ लेट मी क्लियर about random variables. Random variables and its probability distributions. Okay, so let me clear first random variables. So students, in the last topics regarding probability, we already know about what? Already known about random experiments and formation of sample space. We already know this random experiments and formation of a sample space, right students? In all of the random experiments, in all experiments, we were not only interested in a particular outcomes that occurs, but rather some numbers associated with that outcomes. Just go with my words what I am going to discuss here. Student, in the last topics we already know, in all the cases random experiments means whose outcomes not predicted. Okay, in already know about random experiment and formation of a sample space. In all the experiments, जितना हम experiment discuss किए हैं, we were not only interested in a particular outcomes. हमें particular outcomes के ऊपर interested नहीं है, but that occurs, but rather some numbers associated with the outcomes. ठीक है, ये जो नंबर्स जो है उस आउटकम के साथ जो एसोसिएटेड है उसके लिए भी हमको ध्यान देना पड़ता है. एग्जाम्पल्स में डिस्कस करता हूं. सम एग्जाम्पल्स आर, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं सेम थिंग्स को. इन द लास्ट टॉपिक्स वी ऑलरेडी नोन व्हाट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सैंपल स्पेस, एंड इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर आउटकम्स. सिर्फ हमें क्या है, आउटकम्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेते, और भी क्या है, कुछ नंबर्स होते हैं एसोसिएटेड विथ दैट आउटकम्स,
right? For examples, in tossing two dice, we may interest sum of numbers, sum of numbers on the two dice. Okay. Second example, in tossing a coin 50 times, we may interest number of heads occurred या obtained, number of head obtained, occurred, same things, number of heads obtained. In the experiment of taking four articles one after the other from a lot of 20 articles where 6 articles are defective. We want to know the number of defective articles in the sample of 4. Look at here I discuss 3 examples. Okay, in tossing 2 dice, that means sample space are 36 sample space are obtained. So I already told that we were not only interested in a particular outcomes, but rather some numbers associated with that outcomes. So now some examples are regarding this same, both particular outcomes and some numbers. So in tossing 2 dice, जब हम 2 डाइस को टच करते हैं, so 36 outcomes are there. We may interest sum of the numbers on the 2 dice. That means 1 1. It is the sum is 2 1 2. The sum is 1 2 2 1. The sum is 3. Right? ऐसे ही कहां तक जाता है? सम 12 तक जाता है. 1 2 से लेके 12 तक जाता है. In tossing a coin 50 times, number of head obtained. In the experiment of taking 4 articles, एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसमें हम 4 आर्टिकल्स लेना है वन आफ्टर द अदर फ्रॉम ए लॉट ऑफ 20 आर्टिकल्स. हमारे पास 20 आर्टिकल्स है, हमें 4 आर्टिकल्स लेने हैं, बट 20 में से 6 आर्टिकल्स डिफेक्टिव होते हैं. 6 आर्टिकल्स आर व्हाट? डिफेक्टिव है. बट वी वांट टू नो, वी मे इंटरेस्टेड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन द सैंपल ऑफ 4. तो 4 में कितना डिफेक्टिव है? तो 6 है, तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक हो सकता है? 4 तक जा सकता है. राइट? जो हमें 4 आर्टिकल्स लेने हैं उनमें से ऐसे ही होता है कि चारों के चारों डिफेक्टिव नहीं होंगे, बट ऑप्शंस जो है वो कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा. तो इन ऑल द व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दीज 3 एग्जांपल्स? conclusion very important. In the above all experiments, we have a rule that assigns each outcomes
of the experiment in a single real number. वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से हमें कंक्लूजन से जो 3 एग्जांपल्स मैंने दिया, इन टॉसिंग 2 डाइस वी मे इंटरेस्ट सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस। सेकंड एग्जांपल मैंने दिया, इन टॉसिंग ए कॉइन 50 टाइम्स number of head of tens। okay, in the experiment of the taking 4 articles, 4 articles हम लेना है from a lot of 20 articles, see where 6 articles are defective, we want to know the number of defective articles in the sample of 4। so ये 3 examples में हमें क्या conclusion में मिला, in the above all experiments we have a rule that assigns, क्या assigns करता है, each outcomes, हर outcomes के लिए इन ए सिंगल रियल नंबर, एक रियल नंबर देता है। देखिए यहां पर रियल नंबर देता है टू सम ऑफ द 2 डाइस, दैट मींस मैंने आपको बताया था 36 आउटकम्स आर देयर व्हेन वी टॉस 2 डाइस साइमल्टेनियसली। ओके, तो उसमें से जो सम है वो 1 1 1 1, सेम नंबर्स आते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ऐसे ही सम इज इक्वल टू 2, जैसे 1 2 2 1, तो सम यहां पर क्या हो गया 3 हो गया, ऐसे कहां तक जाता है 6 6 6 में 12 तक जाता है। ऐसे ही 50 टाइम्स यदि कॉइन को हम उछालते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स कहां तक जा सकता है, 0 से लेके 50 तक जा सकता है। थर्ड में, ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग 4 आर्टिकल्स, जो 4 आर्टिकल्स हम लेते हैं आउट ऑफ लॉट ऑफ 20 आर्टिकल्स, उसमें 20 में से 6 डिफेक्टिव्स होते हैं, वी वांट टू नो द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन द सैंपल ऑफ 4। ओके, तो ये जो 4 डिफेक्टिव है, हमारे यहां पर डिफेक्टिव है, तो यानी 0 से लेके कहां तक हो सकता है 4 तक हो सकता है। सो इन तीनों एग्जांपल्स में कंक्लूड में पहुंचे कि वी हैव ए रूल दैट असाइंस ईच आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन ए सिंगल रियल नंबर, एक सिंगल रियल नंबर हमें देता है, एंड दैट सिंगल रियल नंबर में बी डिफरेंट, वो डिफरेंट भी होते हैं। देखिए एग्जांपल्स तीनों में, दैट सिंगल रियल नंबर में बी डिफरेंट है, दैट सिंगल रियल नंबर में डिफरेंट विद डिफरेंट आउटकम्स of the experiment, right? So that implies, जो हमारा मेन टॉपिक था रैंडम वेरिएबल, सो रैंडम वेरिएबल can take any real value, so random variable can take any real value, so therefore that implies its codomain is the set of what, पॉजिटिवली क्या होगा रियल नंबर्स होगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन कंक्लूजन तीनों एग्जांपल्स में हमें कंक्लूड में पाए कि इन द ऑल द अबव एक्सपेरिमेंट्स वी हैव ए रूल दैट असाइंस ईच आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ए सिंगल रियल नंबर, सभी में एक सिंगल रियल नंबर देता है, एंड दैट सिंगल रियल नंबर में डिफरेंट विथ डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी रियल वैल्यू, रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, कोई एक रियल वैल्यू हो सकता है, इट्स कोडोमेन इज ए व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, so students again I am repeating the same things using above these 3 examples, that in the all the experiments we have a rule that assigns each outcomes of the experiment in a single real number। क्या देता है कि सिंगल रियल नंबर देता है, वो जो सिंगल रियल नंबर होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट के लिए। सो रैंडम वेरिएबल क्या होगा,
तो जो हमें अभी रियल नंबर मिला वो अलग अलग होता है। तो रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी रियल वैल्यू, इट्स कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन नाउ? Definition of a random variable. So a random variable is a what? Real valued function. Real valued function whose domain is a sample space of a random experiment. So in the above examples we conclude that random variable is a real valued function. Real valued function means जिसका range always एक क्या होगा? real number होगा, कुछ डोमेन इज ए सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका डोमेन भी क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा, किसका? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ओके, और एक बार मैं बता रहा हूं, जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कराया और जो एग्जांपल्स दिया, उस एग्जांपल्स में हमें कंक्लूजन में पहुंचे कि ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन मीन्स जिसका रेंज भी क्या होगा? रियल नंबर होगा, और कुछ डोमेन, उसका डोमेन भी क्या होगा? एक सैंपल स्पेस होता है, किसका? वही रैंडम एक्सपेरिमेंट का। एग्जांपल्स नाउ, हाउ द रैंडम वेरिएबल्स आर डिफरेंट विथ ईच अदर, ये मैं बता रहा हूं अभी एग्जांपल्स के जरिए। कंसीडर दैट, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल हियर, tossing a coin twice, in succession. Tossing a coin twice in succession. So what is the sample space? Yani a coin is tossed twice. So HH, HT, TH and TT. There are 4 sample points. इसमें कितना sample point होते हैं? 4 sample points होते हैं. If X denotes the number of heads obtained, then what implies? That implies X is a random variable. X is a what here? Random variable. So in the sample point, there are 4 sample points in the sample spaces. So X, HH. So how many heads are here? X denotes the number of heads here. So here number of heads is what? 2. Similarly, here in the sample point number of head is 1. TH number of head is 1, and here number of head is 0. So what are the random variables are here? So X, the values of X are here 0, 1 and 2, right? So now again come to the conclusion here. In the above all the experiments, we have a rule that assigns each outcomes of the experiment in a single real number. Okay, एक single real number देते हैं, and that single real number में different है, with different outcomes of the experiment. तो देखिए यहाँ पर different outcomes, जो sample points है, HH अलग है, HT भी अलग है, TH भी अलग है, TT भी अलग है। ओके, जो आउटकम्स आ रहे हैं, तो अलग अलग हमारे क्या मिलते हैं? यानी सेम सैंपल स्पेस में डिफरेंट आउटकम्स होता है, तो उनका जो वैल्यूज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और एक एक रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है? ये रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसका रेंज भी क्या होता है बेटे?
देखो 210 2110, तो एक क्या होता है, एक रियल नंबर्स होते हैं एंड कुछ डोमेन इज ए सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका डोमेन क्या होता है, एक सैंपल स्पेस होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो मैं कुछ आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सो देखिए सेम सैंपल स्पेस में डिफरेंट आउटकम्स होते हैं और उनका जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, सो अलग अलग होते हैं। सो x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड हियर, सो x इज ए रैंडम वेरिएबल। तो आपको पता चल गया वेरिएबल मींस इसका वैल्यू जो अलग अलग होगा 100%, तो यहाँ पर x का वैल्यू अलग अलग होता है, 0 भी होता है, 1 होता है एंड 2 होता है। ओके, सो इसमें से मेरे दिमाग में आया कि एक कंक्लूजन भी मिलता है। क्या कंक्लूजन मिलता है यहाँ पर कि मोर देन one random variable, more than one random variable, so more than one random variable can be defined on the same sample space, on the same sample space. Another example here, if y denotes number of heads minus number of tails. Okay, so tell me YHH नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, तो नंबर ऑफ हेड तो यहां पर 2, टेल तो नहीं है, तो 2 माइनस 0, तो यानी कितना 2। देन HT हेड माइनस टेल, तो हेड भी 1, नंबर ऑफ टेल भी 1, तो 1 माइनस 1 0। TH नंबर ऑफ हेड माइनस टेल, तो इट इज ऑल्सो 0। हेड 1 है, टेल 1 है, तो 1 माइनस 1 0। तो अगेन TT, तो नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो हेड माइनस टेल, हेड कितना 0, 0 माइनस टेल 2, तो माइनस 2। सो व्हाट आर द रैंडम वैल्यूज ऑफ y's आर हियर, -2, 0 and 2, right? So what you conclude here, x and y are two different random variables। यहां पर x y क्या है, दो अलग अलग क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल्स होते हैं सेम सैंपल स्पेस के। देखो ये कंक्लूजन में मिला कि यहां पर तो मैंने बताया था कि आपको जो फर्स्ट एग्जांपल में टचिंग ए कॉइन ट्वाइस इन सक्सेशन, सो सैंपल स्पेस कंटेन्स 4 सैंपल पॉइंट्स मींस 4 आउटकम्स, x डिनोट द नंबर ऑफ हेड ऑफ टेंस एंड x इज ए रैंडम वेरिएबल। x यहां पर क्या है, x को जो मैंने लिया था, x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड ऑफ टेंस, सो x क्या है, रैंडम वेरिएबल। सो हेड यहां पर कितना HH, तो 2 है, यहां पर एक ही हेड है, यहां पर भी TH में भी नंबर ऑफ हेड इज 1 एंड TT में भी नंबर ऑफ हेड 0। सो 0 1 2, सो 3 वैल्यूज मिला। सो मोर देन वन रैंडम वेरिएबल, सो इसमें से हम क्या कंक्लूजन में मिले, मोर देन वन रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड इन द सेम सैंपल स्पेस में, सेम सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ मोर रैंडम वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड होता है। बट अभी जो मैंने एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल दिया, इफ x denotes the number of head minus number of tails, so with same in the same sample space in the previous one, tossing a coin twice in succession, and we take if x denotes the number of heads minus number of tails, तो head minus tail HH में, head 2 है, tail क्या है 0 इसमें, तो 2 minus 0 2। HT तो क्या होगा सैंपल पॉइंट में 1 माइनस 1, तो 0 हो गया। TH में भी 1 माइनस 1, बट यहां पर y इज इक्वल टू TT, तो हेड माइनस नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, तो यानी 0 माइनस 2, तो माइनस 2, तो यहां पर y का वैल्यू क्या होगा -2 0 एंड 2। सो अभी इसमें से क्या कंक्लूजन मिला, यहां पर कंक्लूजन मिल रहा है हमें क्या,
एक्स एंड वाई आर द टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स। एक्स वाई क्या होते हैं? दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल। देखिए एक्स तो डिनोट द नंबर ऑफ हेड ऑफ टेन एंड वाई डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो यहां पर एक्स एंड वाई दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ऑन द सेम सैंपल स्पेस। सो एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट random variables on the same sample space right? ओके, और एक बार मैं इसका आउटलुक दे रहा हूं। ऑलरेडी बच्चे हमें पता है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, राइट? उनमें से बट इन ऑल द एक्सपेरिमेंट्स we are not only interested in a particular outcomes। हमें सिर्फ आउटकम्स के बारे में नहीं इंटरेस्ट लेते, और किसके लिए अभी न्यू चीज क्या आया? सम नंबर एसोसिएटेड विद दैट आउटकम्स। ये जो नंबर यानी आउटकम्स के साथ साथ नंबर्स भी एसोसिएटेड होगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, टचिंग टू डाइस, वी में इंटरेस्ट सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस, आउटकम्स भी 36। फिर उसी में नंबर क्या होता है? इन टचिंग टू डाइस वी में इंटरेस्टेड सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस। तो नंबर्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, आउटकम्स आर 36, सेम नंबर 1 1 2 2 3 3। तो आउट यहां पर क्या होता है? 1 1 कितने आते हैं? सम ऑफ द नंबर्स। तो 1 1 2 आता है, 1 2 2 1। तो 1 2 2 1 मींस यहां पर क्या है? 3। तो 3 सम कितना होता है? ठीक है, 3 हो गया, नंबर्स भी हो गया, आउटकम्स भी हो गया और नंबर भी। थर्ड में, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग 4 आर्टिकल्स, सॉरी, इन ए टॉसिंग ए कॉइन 50 टाइम्स, वी में इंटरेस्ट नंबर ऑफ हेड ऑफ 10। तो 50 तक जा सकता है, तो 0 से लेके 50 तक जा सकता है हेड। ओके, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग 4 आर्टिकल्स फ्रॉम ए लॉट ऑफ 20 आर्टिकल्स, वेयर 6 आर्टिकल्स आर डिफेक्टिव। जो 20 आर्टिकल्स है उसमें 6 डिफेक्टिव है। सो वी वांट टू नो द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन द सैंपल ऑफ 4। तो मैक्सिमम क्या है? 4 हमें आर्टिकल्स लेना है, टेक आउट करना है। तो 0 से लेके 4 भी हो सकता है। ओके, सो कंक्लूजन में हमें क्या मिला? सो जितना एक्सपेरिमेंट हमें लिए उनमें से वी हैव रूल दैट असाइंस ईच आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन ए सिंगल रियल नंबर। वो क्या होता है? एक सिंगल रियल नंबर मिलता है, और जो सिंगल रियल नंबर होता है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट आउटकम्स के लिए ऑफ द सेम सैंपल स्पेस, सेम ऑफ द आउटकम, सॉरी, दैट सिंगल रियल नंबर में डिफरेंट होते डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट है उसी एक्सपेरिमेंट में। ओके, जो सिंगल रियल नंबर होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग आउटकम्स के लिए। ओके, तो इसका मतलब जो रियल नंबर है वो क्या होता है? ये एक रियल वैल्यू होता है, एंड इट्स कोडोमेन इज द सेट ऑफ अ रियल नंबर। लेट व्हाट टू कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जांपल्स एंड कंक्लूजन, वी गेट द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज ए व्हाट? is a sample space of a random experiment। ठीक है, तो जो रैंडम वेरिएबल होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। रियल वैल्यू फंक्शन कहता हूं मैं कि जिसका रेंज ऑलवेज क्या होता है? एक रियल नंबर होगा। कुछ डोमेन इज ए सैंपल स्पेस, इसका डोमेन क्या होता है? एक सैंपल स्पेस होता है। देखो एग्जांपल आपके सामने, टचिंग ए कॉइन ट्वाइस इन सक्सेशन, तो डोमेन यहां पर आ गया एच 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 टी टी एच टी टी। तो यहां पर एस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। दीज आर द आउटकम्स कह सकते हैं या सैंपल पॉइंट भी कह सकते हैं। सो इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ 10, यदि x डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड, तो x इज ए व्हाट? रैंडम वेरिएबल। सो हेड नंबर ऑफ कितना? 2। तो यहां पर क्या क्या मिला? रैंडम वेरिएबल 0 1 2। इसमें कंक्लूजन में क्या मिला हमें? कि मोर देन वन रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस। सेम सैंपल स्पेस में एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं बोल रहा हूं सेम सैंपल स्पेस वही है, टचिंग ए कॉइन ट्वाइस इन ए सक्सेशन, बट इफ y डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स, तो इस केस में क्या होगा? तो देखिए y एच एच, तो क्या होता है? हेड माइनस टेल मतलब 2 माइनस 0 2। तो इसी प्रकार का यहां पर क्या है? रैंडम वेरिएबल क्या क्या मिलते हैं? y इज इक्वल टू -2 0 एंड 2। तो बेटे हमें यहां से क्या मिला? क्या बच्चे मिल रहे हैं यहां पर? कंक्लूजन में x एंड y आर द डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स ऑन द सेम सैंपल स्पेस। ओके, तो x जो y होता है आर द डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स
दो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, ऑन द डिफरेंट अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। देखिए अलग अलग वैल्यूज होते हैं, 012 -2 02 अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स, मतलब सैंपल स्पेस क्या होता है, सेम होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों को रैंडम वेरिएबल्स पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, समृद्धि, आदिति, संजना, आपको समझ आया? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में बेटे मैंने इस क्या पढ़ाऊंगा, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैं रैंडम वेरिएबल्स तो हमें ऑलरेडी पता कर लिए, अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।